Welcome everyone in the class of English for class 10. Today I am with the second chapter of the book Footprints Without Feet entitled The Thief's Story. This story has been written by the Indian author and poet Ruskin Bond. I have given here some information about Ruskin Bond along with what rewards he had achieved. Those awards, the name of those awards have been written. Also, you students please note them in your notebook and then learn. Along with the information about the author, I have written the Hindi meaning and English meaning of some hard words. You will watch them and note them in your notebook, then learn them all, the word meaning and the information about author. Now the story. This story is about a thief, Hari Singh, who is the narrator of this story also. This story tells us how a thief has changed his thought of living with the help of a young person, Anil. Now we read the story. I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. This story is a narrative story, and the narrator is Hari Singh, that was the thief. शुरुआती वो करता है अपने कोटेशन से, एंड ही कोटेड अबाउट हिमसेल्फ दैट कि वह जब अनिल से मिलता है उसमें केवल 15 साल का था, लेकिन हाँ 15 साल की उम्र में ही चोरी के मामले में उसका हाथ साफ था. In the next paragraph, he is describing the personality of Anil, what he had watched. Anil was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. I hadn't had much luck of late and thought if I might be able to get into the young man's confidence. अनिल उसमें रेसलिंग कुश्ती का मैच देख रहा था जब ये वहाँ पहुँचता है, और अनिल के विषय में कहता है कि वो करीब 25 साल की उम्र का होगा, लंबा था, दुबला पतला था. हाँ, देखने में ऐसा लगता था बहुत सीधा साधा आदमी है, दयालु भी देखने से ही उसको लग रहा था. और इसलिए ये थीफ जो है महसूस करता है कि मेरा जो उद्देश्य है किसी को अपना मालिक बनाना, उसके लिए ये आदमी सही लग रहा है, क्योंकि पिछले कुछ समय से इसका जो पर्पस था, इसका जो पेशा था चोरी का, उसमें इसका लक साथ नहीं दिया था. इसलिए वो जाता है, मित्रता का हाथ बढ़ाता है अनिल की तरफ और मित्रता करके उसे अपने मालिक बनाने की कोशिश करता है. आप वाच करेंगे कैसे दोनों के बीच कॉन्वर्सेशन होता है. सबसे पहले हरी सिंह थोड़ी चापलूसी भरी बातें करता है. You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. ये हरी सिंह भी ऐसा ही कहता है. फ्लैटरी मीन्स चापलूसी करना होता है, झूठी प्रशंसा करना. इसलिए उसको भी झूठी प्रशंसा करता है कि तुम भी थोड़े पहलवान की तरह दिखते हो. In the response of this, Anil said, "So do you." He replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. Well, I said modestly, I do wrestle a bit. तो ये भी कहता है कि अनिल कहता है कि तुम भी ऐसे ही दिखते हो. तो थोड़ी देर के लिए तो ये थोड़ा सा बहुत चक्कर आ जाता है क्योंकि उस समय ये थोड़ा दुबला था, लेकिन फिर भी बोलता है हाँ थोड़ा बहुत कर लेता हूँ. इसके बाद प्रश्न का दौर शुरू होता है, और ध्यान दीजिएगा कितनी बार हरी सिंह झूठ बोलता है, कब पहली बार बोलता है, कब दूसरी बार बोलता है, अनिल क्या क्या क्वेश्चन करता है. स्टूडेंट, यू प्लीज वॉच दिस ऑल. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स योर नेम? हरी सिंह, I said. I took a new name every month. That kept me ahead of the police and my former employers. जब अनिल ने इसे नाम पूछा तो अपना नाम हरी सिंह बताया, और ये कहता है कि हर बार ये अपना नाम बदलता था. जब भी अपना कोई नया मालिक बनाता था तो उसको नाम बदल देता था. इसलिए
कि ताकि इसका पहले से जो एम्प्लॉयर था, मालिक था, वो या पुलिस इसको पकड़ ना पाए। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting, and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. तो अनिल ने बस इधर उधर की बातें की, वही रेसलर्स के बीच में बातें की, के विषय में बातें की। उसके बाद वो निकल पड़ा। मैं भी उसके पीछे गया। अनिल फिर से इससे कहता है, जब देखता है पीछे आ रहा है, हेलो अगेन। I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said, but I can't pay you. तो मैंने अपीलिंग स्माइल, बहुत आकर्षक मुस्कान, जब इसे किसी को सामने वाले को खुश करना रहता था, अपनी तरफ आकर्षित करना होता था, तो ये बहुत ही आकर्षक मुस्कान देता था। ऐसा इसने अनिल को भी किया और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। अनिल कहता है, लेकिन मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता हूँ। I thought that over for a minute. Perhaps I had misjudged my man. I asked, "Can you feed me?" जब वो कहता है कि वो उसे पे नहीं कर सकता है, तो एक मिनट के लिए मैंने सोचा कि कहीं मैंने गलत आदमी को तो अपना मालिक बनाने का नहीं सोचा है। फिर भी मैंने पूछा, क्या तुम मुझे भोजन करा सकते हो? फिर अनिल क्वेश्चन करते हैं, कैन यू कुक? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। ये दूसरी बार फिर इसने झूठ बोला। जब अनिल ने पूछा कि क्या तुम भोजन बना सकते हो, तो ये बोलता है, हाँ मैं बना सकता हूँ, जबकि इसे भोजन बनाना बिल्कुल नहीं आता था। तो अनिल भी कहता है, इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। ठीक है, यदि तुम भोजन बना सकते हो तो मैं तुम्हें भोजन खिला सकता हूँ। देन अनिल he took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. तो वो अपने रूम में लेके जाता है। अब देखना है कि अनिल का रूम कहाँ है। जुमना स्वीट शॉप था, उसके ऊपर वह एक रूम में रहता था और इसे कहता है कि तुम बालकनी में सो सकते हो। But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. और लेकिन उस दिन जो मैंने भोजन बनाया वो इतना बेकार था कि अनिल ने उसे गली के कुत्तों को जाके भोजन दे दिया और मुझे कहा कि तुम यहाँ से जा सकते हो। But I just hung around, smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing. लेकिन मैं वहाँ खड़ा रहा और अपना वही अपीलिंग स्माइल दिया, अपीलिंग वे में, और अनिल ने भी जब मुझे ऐसे मुस्कुराते हुए देखा तो वो भी हंसी को रोक नहीं पाया। इसके बाद वो अनिल ने इसे क्या हेल्प किया, इसको भी ध्यान देंगे आप। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड, नेवर माइंड, ही वुड टीच मी टू कुक। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. आप देखेंगे कि बुक में अंडरलाइन किए हुए हैं सेंटेंसेस को। यानी इस पैराग्राफ में वही सेंटेंसेस अंडरलाइंड है जिसमें यह शो हुआ है कि अनिल उसे क्या क्या सिखाता है। अनिल कहता है कि मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। उसके साथ ही अनिल ने खाना बनाना तो इसे सिखाया ही, साथ ही अनिल ने सिखाया कैसे इसका नाम लिखा जाता है और इतना भी ये भी कहा कि मैं जल्दी ही तुम्हें पूरा सेंटेंस लिखना सिखा दूंगा और कैलकुलेशन करना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना भी मैं तुम्हें सिखा दूंगा। I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. मैं बहुत ही ग्रेटफुल हो गया अनिल के प्रति, क्योंकि एक बार मैं जानता था कि ये फैक्ट है, एक बार जहाँ पढ़ना लिखना आ गया उसके बाद तो बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ पाया जा सकता है एक शिक्षित आदमी की तरह, यदि लिखना पढ़ना आ गया तो। It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew
I made a little money this way, but he did not seem to mind. अनिल के साथ मेरा समय बहुत आनंदपूर्वक बीत रहा था। सबसे पहले मैं सुबह में चाय बनाता था। उसके बाद दिन में कुछ सामान की खरीदारी करने चला जाता था। ये निश्चित था कि जब भी मैं खरीदारी करता था प्रतिदिन, तो 1 रुपये में बचाता था। मैं समझता हूँ कि अनिल भी इस सच्चाई को जानता था, लेकिन उसे कभी ये बुरा नहीं लगा। Anil made money by fits and starts. He would borrow 1 week and the next, and lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. इस पैराग्राफ में हरी सिंह अनिल के विषय में बताता है कि अनिल कैसे रहता था, अपने खर्च के लिए वो क्या अर्निंग उसका था, क्या तरीका था। जब हरी सिंह ने इसे वॉच किया तो उसके बारे में बताता है कि अनिल फिट्स एंड स्टार्ट्स वे में वो मनी अर्निंग करता था। फिट्स एंड स्टार्ट एक फेज है जिसका अर्थ होता है अनियमित रूप से। तो अनियमित रूप से कोई फिक्स, जैसे कोई भी बिजनेसमैन होते हैं तो वो या तो डे बाय डे उनको अर्निंग होती है या कुछ अलग वे होता है। जो प्रोफेशन में होते हैं उनका भी मंथली अर्निंग होता है, फिक्स होता है, अर्निंग का एक फिक्स वे होता है। लेकिन अनिल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। एक सप्ताह तो वो बोरो करता था, उधार लेता था किसी से, फिर अगले सप्ताह फिर उसे उधार दे देता था। चेक आने के लिए, किसी भी चीज़ का चेक आने के लिए एक पहले वो चिंतित रहता था, लेकिन जैसे ही चेक आता था वो बाहर चला जाता था और बहुत आनंद मनाता था, सेलिब्रेट करता था उसे। ऐसा लगता था, ऐसे प्रतीत होता था कि जैसे वो मैगजीन्स के लिए कुछ लिखता था। बड़ा विचित्र तरीका था उसके अर्निंग का। One evening he came home with a small bundle of notes, saying he had just set a book for a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. एक शाम जब अनिल घर वापस आया तो उसके हाथ में कुछ नोट्स का एक बंडल था। वो कहता है कि उसने पब्लिशर को एक बुक बेचा है, और ये तो चोर था, इसलिए इसकी नज़र उस नोट के बंडल पे थी। उस रात में मैंने देखा कि वो जो है जहाँ वो सोता था, गद्देदार उसका एक बिस्तर था, उसके नीचे वो दबाकर मनी को रखता है। टक करता है मीन्स दबाकर रखता है। I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door, and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. ध्यान देना स्टूडेंट्स, जब कोई भी इंसान, एनी ऑफ पर्सन व्हेन थिंग्स टू डू समथिंग रॉन्ग, एट फर्स्ट ही मेक अ कॉन्वर्सेशन विथ हिज और हर इनर हार्ट। दैट वाज द सेम विथ हरी सिंह। अब उसको चोरी का जो इरादा था वो उजागर होने लगता है और वो खुद को समझाता है या खुद से बातें करता है। इस पैराग्राफ में या फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में भी कुछ ऐसा ही है। ये कहता है कि मैं तो अनिल के लिए करीब 1 महीने से काम कर रहा हूँ और थोड़ी बहुत रोज़ जो 1 रुपये बचा लेता था, उसके अलावा मैंने अपना जो मेरा चोरी का जो पैसा है उसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि कई मौके मिले, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली कि मैं ऐसा कर सकता था, क्योंकि अनिल ने एक चाबी दरवाजे की दे रखी थी। मैं अपनी मर्जी से जा सकता था या आ सकता था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि आज तक मैंने जितनी भी आदमी से मैं मिला हूँ, अनिल सबसे विश्वासी आदमी मुझे मिला। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। और यही कारण है कि उसको लूटना बड़ा मेरे लिए कठिन था। इट्स ईजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन एफोर्ड टू बी रॉब, बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन. Sometimes he doesn't even notice
he has been robbed and that takes all the pleasure out of the world. एक लालची आदमी को लूटना आसान है क्योंकि उसके पास इतना पैसा होता है कि उसको लूटा जा सके, लेकिन एक केयरलेस आदमी जो होता है, जिसको अपनी ही परवाह नहीं है, उसको लूटना बड़ा कठिन होता है। कभी कभी तो ऐसे आदमी को पता ही नहीं चलता है कि वो लूटा भी गया है। तब एक चोर को अपने पैसे में मज़ा भी नहीं आता है। वेल, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ, amount of practice, and if I don't take the money, he will only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. अब ये एक डिसीज़न लेता है और डिसीज़न के रूप में लेता है, चलिए भाई मैं अपने वर्क, अपना जो वास्तविक काम होना चाहिए मैं करूँगा। मैंने अपने आप से बोला कि अगर मैं नहीं करता हूँ तो मेरा जो प्रैक्टिस ऑफ वर्क है, चोरी करना, वो मेरी आदत छूट जाएगी। और फिर अनिल मुझे कुछ मैं ये पैसा भी तो मुझे नहीं देता है, मैं इतना उसके लिए काम करता हूँ, पे भी तो नहीं करता है, और यदि मैं उसका पैसा नहीं लूँगा तो वो उसे अपने दोस्तों में उड़ा देगा। सो द स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट रेस्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल रीड इन नेक्स्ट क्लास. So come on the 3 questions that has been given in the beginning of the story. The first question, who does I refer to in this story? तो ये तो जानी हुई बात है, हरी सिंह जो चोर था. सेकेंड क्वेश्चन, what is he a fairly successful hand at? तो रॉबिंग में, दूसरे को रॉबिंग में, लूटने में वो सक्सेसफुल हैंड था उसका. इसका वर्णन आप करेंगे, स्पेशली जो लोग सीधे होते थे उनको. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क? जो भी ये काम अनिल के साथ रह के करता था, उसके बदले में अनिल से उसे क्या मिलता था? अनिल से जो कमिटमेंट हुई थी उसकी चर्चा आप सबसे पहले करेंगे. उसके बदले में अनिल से इसे भोजन मिलता था. हाँ, आप उसमें ऐड कर सकते हैं इसके साथ ही अनिल उसे खाना बनाना भी सिखाया, लिखना भी सिखाता था और कैलकुलेशन करना भी. सो स्टूडेंट्स, यू विल learn the word meaning about the author and do the 3 questions. That's all.